Hello friends, myself Rasika Pagadia from Aram College. In last lecture, we studied about the Paleolithic age. In that we saw that Paleolithic age divided into three parts, that is the lower pathological age, middle pathological and the upper pathological, right? Then we saw that the chronological of the Paleolithic age in India, then we saw the Paleolithic culture in India, then tools which they used, that is the tools of Paleolithic age. In that we studied the lower Paleolithic, then the middle Paleolithic period and the upper Paleolithic age, and the last point we studied was the community life during Paleolithic age. Now today we will start with the Mesolithic age. The Mesolithic age, also known as Middle Stone Age, was the second part of the Stone Age. See, the Mesolithic age क्या है, is also known as the Middle Stone Age, and it was the second part of the Stone Age. In India, it spanned from 9000 BC to 4000 BC. See, in India, ये कब से था ये age? In India, it was from the 9000 BC. What happened? Sorry, yeah. Just a minute, friends. That in India it was from 9000 BC to 4000 BC. This age is characterized by the appearance of microlithic, like small bladed stone balls. See, इस एज में क्या था? इस एज में अपने को एक सिग्निफिकेंट चीज़ क्या दिख रही है? अपने को स्टोन टूल्स दिखे जो ब्लेडेड थे, स्मॉल ब्लेडेड स्टोन टूल्स दिखे, जिसको अपन बोल रहे हैं माइक्रोलिथिस. द Mesolithic age was the traditional phase between the Paleolithic age and the Neolithic age. See, जो Mesolithic age क्या है? It was a transitional phase. The Mesolithic age क्या था? ये transitional phase था between the Paleolithic age and the Neolithic age. The people of this age lived on hunting, fishing and food gathering. See, the people first क्या था of this age? The first people lived on hunting, fishing and food gathering. Later on they also domesticated animals. See, बाद में फिर वो domestic animals का भी use करने लगे. Mesolithic is the period between the upper Paleolithic and the Neolithic. Obviously ये middle age रहेगा ना, लाइक उसके पहले क्या था? पैथोलिथिक एज था, और मेसोलिथिक के बाद अपन पढ़ाई करेंगे न्यूलिथिक. तो ये क्या है? मेसोलिथिक इज द पीरियड बिटवीन द अपर पैथोलिथिक एंड द न्यूलिथिक. द टर्म पैथोलिथिक एंड न्यूलिथिक वेर इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन लुबॉक इन हिज वर्क प्रीहिस्टोरिक टाइम्स इन 1865. सी, द टर्म पैथोलिथिक एंड न्यूलिथिक, ये जो टर्म अपन बोल रहे हैं पैथोलिथिक, न्यूलिथिक, ये पे सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन लुबॉक इन हिज वर्क प्री हिस्टोरिक टाइम्स इन 1865. जॉन लुबॉक ने उसने सबसे पहले ये टर्म इंट्रोड्यूस किया था. और कब? जब वो प्री हिस्टोरिक टाइम्स इस पे कुछ लिख रहे थे, इस पे काम कर रहे थे, इन द ईयर 1865. The additional Mesolithic category was added as an intermediate category by Hodder Westrop in 1866. See, Paleolithic and Neolithic, it was introduced by John. और फिर Mesolithic ये किसने इंट्रोड्यूस किया? It was introduced by Hodder in 1866. राइट, तुरंत एक साल में Hodder ने एक और एडिशनल कैटेगरी डाल दी, और जो इन दोनों के बीच में का है, दैट इज द मेसोलिथिक, एंड इट वाज इन द ईयर 1866. द मेसोलिथिक एज विच मेंट मिडिल स्टोन एज वाज द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोन एज. सी, द मेसोलिथिक एज क्या है? विच मीन द मिडिल स्टोन एज. मेसोलिथिक का मीनिंग क्या है? लाइक अपन ने देखा अर्ली स्टोन एज मैन, देन मिडिल स्टोन एज मैन देखेंगे, और नेक्स्ट न्यूलिथिक यानी क्या है? बाद में लेटर द स्टोन एज. So it is known as the Middle Stone Age, was the second part of the Stone Age. This age is characterized by the use of microlithic. See,
अब स्टोन एज, ये जो मिडिल स्टोन एज है, ये एज में क्या है, दिस पीरियड इज क्लासिफाइड बाय द यूज ऑफ माइक्रोलिथिक, दैट इज स्मॉल ब्लेडेड स्टोन टूल्स. Now, meaning of Mesolithic. Mesolithic or Middle Stone Age was a much shorter period than Paleolithic, having lasted over 30,000 years in Sri Lanka and parts of Africa to only about 10,000 years in India and West Asia. See, Paleolithic age क्या था? It was a long age, like काफ़ी सालों तक चला. Okay, एंड नियोलिथिक भी उतना ही बड़ा है. हाँ, नियोलिथिक भी बड़ा ही था. बट ये मेसोलिथिक क्या था, ये जितना बड़ा ये पैसोलिथिक था ना, उतना बड़ा ये नियोलिथिक एज नहीं था. राइट, इट वॉज सी, इट इज़ लास्टेड फ्रॉम ओवर 30,000 ईयर्स. मतलब ये कब तक चला, ये 30,000 ईयर्स पहले का है. और सबसे पहले इट वॉज फाउंडेड इन श्रीलंका. देन वी सॉ दिस एज इन द पार्ट ऑफ सम अफ्रीका to about only 10,000 years. Okay, अफ्रीका में क्या था ये, on about 10,000 years. और then in India and West Asia, इंडिया और वेस्ट एशिया में 10,000 years था. और 30,000 it was in श्रीलंका एंड अफ्रीका. मैंने गलत बोल दिया था थोड़ा सा, आई एम सॉरी. Mesolithic period has enormous cultural history importance in old world prehistory. See, Mesolithic period क्या है, Mesolithic period has enormous culture. Like Mesolithic period का क्या है, कल्चर बहुत बड़ा है और हिस्ट्री में एक उनका ओल्ड पुराना काम है, लाइक ओल्ड वर्ल्ड प्री हिस्ट्री. द टेक्नोलॉजिकल हॉलमार्क ऑफ दिस पीरियड आर टाइनी स्टोन टूल्स और माइक्रोलिथिक. सी, द टेक्नोलॉजिकल हॉलमार्क ऑफ दिस पीरियड क्या है, अब टेक्नोलॉजिकल हॉलमार्क ऑफ दिस पीरियड क्या है, tiny stone tools or microlithic. In addition, the Mesolithic people also used non-microlithic tools made of flex and blade. See, इसके अलावा क्या है, हम जिस मेसोलिथिक पीपल, जो ये मेसोलिथिक पीपल थे, वो क्या है, सिर्फ ये माइक्रोलिथिक टूल्स ही नहीं यूज़ करते थे. अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो यूज्ड नॉन माइक्रोलिथिक टूल्स मेड ऑफ फ्लेक्स एंड ब्लेड्स, जो फ्लेक्स एंड ब्लेड से बने रहते हैं. फ्लेक्स यानी वो झाड़ के थिक, अभी कोकोनट की ब्रांच लेते हो अपन, तो उसके अंदर एक फ्लेक्स बोल के रहता है. देखो, आई वुड हैव ड्रॉन एंड शोन टू यू बट इज़ रियली डिफिकल्ट राइट नाउ. ठीक है, फ्लेक्स आप गूगल पे डाल के सर्च करो, आपको मिल जाएगा एंड आपको आराम से समझ में भी आ जाएगा. तो उस वक्त उन्होंने नॉन माइक्रोलिथिक टूल्स भी यूज़ किए हैं विच वर मेड अप ऑफ फ्लेक्स एंड ब्लेड्स. Mesolithic people made a number of technological innovations like bow and arrow for hunting. Right? अभी अपन ने बो एंड एरो, आज भी अपन देखते हैं ना, बच्चे खेलते रहते हैं बो एंड एरो से एंड ऑल, देखते हो ना आप लोग. ऐसे आई डोंट नो आपके घर पे छोटे बच्चे हैं या नहीं, बट जो छोटे बच्चे हैं वो बो एंड सी. मेसोलिथिक पीपल क्या है, उन्होंने नए नए टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस किए थे लाइक बो एंड एरो फॉर हंटिंग. हंटिंग के लिए बो एंड एरो क्यों यूज़ करते थे, पहले तो हंटिंग कैसे करते थे, उनके पास वो शार्प ब्लेड जैसा टूल रहता था, उससे हंटिंग करते थे मेसोलिथिक एज में. बट मेसोलिथिक पीरियड में क्या कर रहे हैं, हंटिंग कैसे कर रहे हैं वो लोग, दे आर डूइंग हंटिंग विद द हेल्प ऑफ बो एंड एरो. Quarrums, grinders and hammer stones for grinding and pulverizing plants, foods like roots, tubers and seeds, and regular use of fibers for India. See, उन्होंने क्या किया, ग्राइंडर वगैरह निकाले. ग्राइंडर मतलब आज जो अपन मिक्सर ग्राइंडर करते हैं, ऐसे करने का तुरंत नहीं, उस वक्त वो ग्राइंडर हाथ से चलाना पड़ता था. हैमर स्टोन्स यूज़ करते थे फॉर ग्राइंडिंग. ग्राइंडिंग करने के लिए क्या करते थे, दे यूज टू यूज़ दैट हैमर स्टोन फॉर ग्राइंडिंग. और फिर प्लांट्स, रूट्स, हाँ ये सारे, कुछ कुछ प्लांट्स के अपन रूट्स भी खा सकते हैं. अपन खाते हैं रूट्स भी कुछ कुछ प्लांट्स के, जैसे बीटरूट. बीटरूट तो अंडरग्राउंड ही उगता है, तो वो एक रूट जैसा ही रहता है ना, तो अपन खाते ही है. रेडिश खाते हैं, हाँ ये सब अपन भी खाते हैं. सीड्स, इन सब का कैसे कैसे खाया जाता है, कैसे उगाते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है, ये सब देखा. एंड स्पेशली कहाँ पे हुआ था,
This we can see in India. Mesolithical culture, roasted meat, tubers, etc. See, मेसोलिथिकल कल्चर में अपन ने देखा पहले तो लोग हंटिंग करते थे, स्किन निकालते थे एनिमल का और डायरेक्ट खा लेते थे उसका फ्लैश. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने रोस्ट करने का सीखा, राइट. दे स्टार्टिंग रोस्टिंग मीट्स एंड ट्यूबर्स एक्सेट्रा. They created large volume of art in the form of several thousand paintings and engraving, which not only tell us about their aesthetic taste but also about their capacity for innovating new technological elements, modes of subsistence economy, items of material culture, social organization and religions. See, they created a large volume of art. उन्होंने बहुत ज़्यादा आर्ट में भी काम किया है. इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स, देन एनग्रेविंग. एनग्रेविंग मतलब कार्विंग जैसा करते हैं ना अपन वॉल पे वगैरह, वो. और उनका टेस्ट भी अलग था और उन्होंने बहुत सारी नई नई इनोवेशंस की और नए नए टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट्स लाए एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस भी उन्होंने बहुत ज़्यादा लाए थे उनके उस पीरियड में. Then moving towards the next point, that is the tools of Mesolithic era. The Mesolithic tools, smaller in size and better in finishing than the pathological age and are called microlithic. See, ये जो टूल्स को लोग यूज़ करते थे वो क्या थे, साइज में छोटे थे बट प्रॉपर फिनिशिंग के साथ थे. जो पैथोलॉजिकल एज में जो टूल्स यूज़ किए थे उससे मेसोलिथिकल एज के टूल्स मच बेटर थे. दे वर प्रॉपर फिनिश, प्रॉपर साइज के थे और उनको अपन ने नाम दिया है माइक्रोलिथिक. दिस माइक्रोलिथिक्स आर टाइनी टूल्स ऑफ 1 to 5 centimeters length made by blunting one or more sides with steep retouch. See, अभी ये जो दिस माइक्रोलिथिक्स क्या है, दिस आर टाइनी टूल्स ऑफ 1 to 5 centimeter. दिस मेथोलिथिक ये क्या है, ये टाइनी टूल्स है और ये कितने 1 to 5 सेंटीमीटर लेंथ के हैं और ये क्या है, मेड बाय ब्लंटिंग वन और मोर साइडर्स विथ स्टीप रिटच. मेड बाय ब्लंटिंग वन और मोर साइड्स विथ स्टीप रिटच. द मेन टूल टाइप्स आर बैक्ड ब्लेड्स. सी, द मेन टूल टाइप्स क्या था, एक तो बैक्ड ब्लेड्स था, ये उनका मेन टूल था. ऑब्लिक्वेंट्री, truncated blades, pointer crescents, triangles and trapezy. See, अभी ब्लेड्स क्या क्या थे, क्रीसेंट शेप. क्रीसेंट शेप यानी मून. अभी अब मून देखो, मून अभी क्रीसेंट शेप का है. लाइक काजू, अपन काजू खाते हैं ना, ड्राई फ्रूट में काजू, दैट इज द क्रीसेंट शेप. देन ट्राइंगल एंड ट्रपेजी. ट्रपेजी यानी अपन जो पहले अपन स्कूल में थे वो ब्लेड यूज़ करते थे. देखो दोनों साइड शार्प होते थे, लोग वो शेविंग करने के लिए भी वो ब्लेड यूज़ करते थे. दैट ब्लेड इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द ट्रपेजी शेप. मतलब ये सब शेप्स के उनके पास टूल्स वगैरह थे. सम ऑफ द मेथोलिथिक वेर यूज्ड एज कंपोनेंट ऑफ स्पेयर हेड्स, एरो हेड्स, नाइफ्स, स्किल्स, हार्पून्स एंड डैगर्स. सी, सम ऑफ द मेसोलिथिक्स क्या है, इट वर यूज्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ स्पेयर हेड्स. स्पेयर हेड्स, एरो हेड्स, ये कंपोनेंट बोल के यूज़ करते थे एज अ स्पेयर हेड, एरो हेड, नाइफ, स्किटल, हार्पून्स एंड ट्रैकर्स. दे वर फिटेड इन ग्रूव्स इन बोन्स, वुड एंड रीड स्टफ एंड जॉइंट टुगेदर बाय नेचुरल एडिडेंट लाइक गम एंड रेसिन. सी, अभी क्या करते थे, ये कैसे बनाते थे, अब बोन लेते थे, किसी एनिमल का बोन वगैरह मिल जाता था तो बोन लेते थे, फिर उस बोन को वो लोग उस तरह से मोल्ड करते थे. लाइक बोन को तो आप कुछ नहीं कर सकते बट वो हार्ड पॉइंट से उसको स्टफ था, फिर उसको वुड लगा या फिर वुड लेते थे या कुछ तो रीड स्टाल्फ लेते थे और ज्वाइन करते थे विद द हेल्प ऑफ गम वगैरह. गम वगैरह यूज़ करके सारा ज्वाइन करके वो लोग लेते थे. यूज ऑफ बो एंड एरो फॉर हंटिंग हैज़ बिन डॉक्यूमेंटेड बाय मेसोलिथिक मैन in rock art of that period. See, they were fitted in grooves. See, use of bow and arrow for hunting has been documented by Mesolithic man in rock art of that period. See, bow and arrow वो जिस हिसाब से it was used ना, it is called as one of the rock art of that period. Like Mesolithic man का क्या है, it is the rock
art of that period. The board stone, which had already appeared during the Upper Patholic, became common during this and the Neolithic and Chalcolithic period. See, जो बोर्ड स्टोन बोलते हैं ना, आई थिंक वो गार्गी का स्टोन बोलते हैं ना अपन एक साथ घिसने का, विच हैड ऑलरेडी अपियर ड्यूरिंग द, ये ऑलरेडी आ गए थे अपर पैथोलिक, मतलब पैथोलिक पीरियड जब अपर में था, ऑलमोस्ट एंड होने था तब, बिकेम कॉमन ड्यूरिंग दिस टाइम. अभी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा मेथोलिथिक एज में एंड द मेथोलिथिक एंड चारकोलिक पीरियड. देयर these are believed to have been used as bait in digging sticks and net sinkers. See, these are believed to have, अब ये वेट जब हैवी चीज़ें डिग करनी है तब ये यूज़ होता था, नेट बनाने के लिए वगैरह यूज़ होते थे. सिमिलरली shallow crane and grinding stones also occur at several sites. See, shallow cranes, grinding stone, ये भी अपने को बहुत से साइट से मिले. These new technological elements led to enhanced efficiency in hunting, collecting and processing of wild plant foods. See, ये जो नई technological elements थे, it was used for proper hunting, collecting and processing of wild animals. Changes in life in Mesolithical era. After about 10,000 BC, the climate gradually become warmer again. अभी 10,000 BC के बाद क्या है, क्लाइमेट थोड़ा सा चेंज होने लग गया, क्लाइमेट क्या हो गया, थोड़ा सा गर्म होने लग गया. Many of the animals went with the cold weather to the north. अभी बहुत से एनिमल्स क्या हो गए, वो क्या गए, जहाँ पे ठंडी है, नॉर्थ में कैसा मौसम ठंडा रहता है तो वो नॉर्थ में चले गए. Some animals like the mammoth, elk, woolly rhino and bison became extinct. See, ये mammoth, ये सारे क्या है, ये ठंडी में सर्वाइव करने के एनिमल्स हैं, राइट. Some animals like the mammoth, elk, woolly rhino and bison, ये क्या है, इवन दिस एक्सटिंग्विश, ये अभी रहे ही नहीं एनिमल्स, क्योंकि उनको ज़्यादा गर्मी सहन नहीं होती और उनको अच्छे से क्लाइमेटिक चेंज हुआ तो दे फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव एंड दे एक्सटिंग्विश. जनरली द नीदरलैंड वेर कवर्ड विथ फॉरेस्ट विच वेर रिच इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. अभी नीदरलैंड एवरीवन नोज इट इज़ कवर्ड विथ फॉरेस्ट और वहाँ पे एनिमल्स एंड प्लांट्स बहुत ज़्यादा है. दिस चेंजेस वेर द बिगनिंग ऑफ न्यू एज. अभी क्या हो गया, नया एज आना चालू किया एंड इट इज़ नोन एज द मिडिल स्टोन एज. It is with this period that the prehistory is Archino begins. अभी क्या हो गया, नया सब कुछ चालू हो गया. Now domestication of plants and animals. The economy of early period of Mesolithical age was based on hunting, fishing and food gathering. The economy क्या है, अभी इसमें क्या था, लोग कैसे जीते थे, हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे और फूड इकट्ठा करके पीपल यूज टू लिव हियर. स्लोली, अब क्या हो गया, स्लोली डोमेस्टिकेटिंग क्रॉप्स एंड एनिमल्स मेड देयर वे इनटू ह्यूमन लाइफ. सी, अभी धीरे धीरे क्रॉप्स उगाना, एनिमल्स कैसे यूज़ करना, इन सब चीज़ों ने क्या हुआ, ह्यूमन लाइफ में जगह लेने लग गए ये लोग. लाइक एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं अपन अपने रोज़ के काम के लिए, हाँ, क्रॉप्स कैसे ग्रो सकते हैं, ये थोड़ा सा लोग जानने लगे. बाय 6000 BC food production became prominent part of Mesolithical life. See, by 6000 BC क्या हो गया, food production became a important part of Mesolithical life. Agriculture had not fully developed by was only a prototype of domestication of crops and animals. See, agriculture हो रहा था, चल रहा था, but it was not fully developed. Okay, the earliest evidence of domestication of animals has been provided by Adhamaghatha in Madhya Pradesh and Begor in Rajasthan. See, अभी evidence of domestic like animals भी यूज़ कर, domestic animals का भी यूज़ हो रहा था. ये अपने को कहाँ से पता चला, अधमगता मध्य प्रदेश में और बेगौर इन राजस्थान. Some example of earlier civilization of plants around 7,000-6,000 years back have been found near सांबार लेक इन अजमेर राजस्थान एंड मेघर्त इन पाकिस्तान. सी, सिविलाइजेशन हो रहा था, प्लांट्स एकदम पुराने पुराने प्लांट्स अपने को कहाँ दिखे,
ऑलमोस्ट 7,000-6,000 ईयर्स बैक। ये प्लांट्स, ये ऐसे टाइप्स के प्लांट्स अपने को कहाँ दिखे? सांबर लेक इन अजमेर राजस्थान एंड मेघरत इन पाकिस्तान। The first animal to be domesticated were dog, cattle, sheep and goat, and the first plant to be cultivated were wheat and barley. See, सबसे पहला एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल अपन ने क्या यूज़ किया एज ए, आज भी अपन बोलते ना डॉग डोमेस्टिक एनिमल है, शीप, कैटल, गोट, ये जो पहले ज़माने से था आज भी वही चल रहा है अपने आप पे। आज भी अपन डॉग, शीप, कैटल, ये सबको क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स ही बोलते हैं। और जो पहला क्रॉप उन्होंने कल्टीवेट किया था, ग्रो किया था, दैट वाज द व्हीट एंड बार्ले। दिस न्यू सबसिस्टेंस इकोनॉमी बेस्ड ऑन फूड प्रोडक्शन हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। सी, ये जो फूड प्रोडक्शन चालू हो गया था, इसका इवोल्यूशन ह्यूमन लाइफ पे, सोसाइटी पे, एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा चला और उसका इम्पैक्ट अपन आज भी देख रहे हैं। इन द ह्यूमिड लैंड्स extensive from the middle Ganga Valley to China and the southern Southeast Asia, rice cultivation and domestication of pig was accomplished probably around the same time period. Rice and pig extended in wild form in this region. से अब क्या हो गया? अभी लैंड में क्या हो गया? ह्यूमिड लैंड हो गई। तो क्या है? ये जो मिडिल गंगा वैली टू चाइना एंड टू द साउथ ईस्ट एशिया राइस कल्टिवेशन दिख रहा है, और पिग भी अपन यूज़ कर रहे हैं एज अ डोमेस्टिक एनिमल्स बोल के। क्यों? पिग एंड राइस क्या है? ये अपन क्या बोलते थे? इट इज़ राइस, पिग, ये सारे वाइल्ड फॉर्म रीजन में दिख रहे थे अपने को। द कल्टिवेशन ऑफ याम्स एंड टैरो ऑल्सो टुक प्लेस इन दिस रीजन। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स proved to be useful not only for meat but for milk, hide agriculture operations and transport. See, आज भी अपन मीट है, ये गोट, शिप, इन मीट के लिए वगैरह भी यूज़ करते हैं। गाय का दूध वगैरह भी अपन यूज़ करते हैं, लाइक शिप, गोट का मिल्क एज इन यूज़ करते हैं। देन एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के लिए भी अपन यूज़ करते हैं एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी अपन ये सारी एनिमल्स यूज़ करते थे। So we'll wind up our lecture here. In next lecture we'll study the Normids to sedentary settlement. Thank you.